So in this video we will discuss about the why we need classes. So पिछली वीडियो और लेक्चर में पढ़ा था कि हमने क्लास की क्लास क्या आती है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं क्लास में। वैसे ही हम पढ़ेंगे why do we need classes. Suppose there is a college has an information about 10,000 students. एक कॉलेज में 10,000 बच्चों का रिकॉर्ड्स है, उनकी इंफॉर्मेशन है और ईच स्टूडेंट हैज अ नेम, रोल नंबर, एज, ब्रांच, सीजीपीए। हर एक बच्चे का अपना ही एज है, रोल नंबर, एज, ब्रांच, सीजीपीए है। So without classes, we will not be able to create thousands of separate variables. So in that, because there are so many children, so it is difficult for us to maintain the record each without a class. With class, we can create the record of each student because it would be uh, much easier for us to maintain those records by using classes with the help of class. So here is the example. Suppose there is a student one. So हमने इसका नाम लिखा, उसके बाद स्टूडेंट वन की एज लिखी जैसे और उसका रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट टू का एज, स्टूडेंट टू की रोल नंबर. So it becomes very difficult to manage because हम हर एक स्टूडेंट का उसका एज लिखेंगे, उसकी नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे. ऐसे ही अगर 10,000 स्टूडेंट्स होंगे तो कितना सारा डाटा ऐसे ही हो जाएगा. Instead of all these, we can create a single class named student. हम एक ही क्लास स्टूडेंट बना के उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट स्टोर कर सकते हैं. देन we create multiple students objects. So वहाँ पे हम मल्टीपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. एग्जाम्पल है जैसे स्टूडेंट है राहुल, अमन, प्रिया. और एग्जाम्पल्स है जैसे इट्स इन स्टूडेंट्स की डिटेल्स हमें सेव करनी है. ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू द सेम क्लास बट कंटेन डिफरेंट वैल्यू. तो उनकी क्लास तो सेम है ना, कि यहाँ पे सिर्फ हम स्टूडेंट्स का नाम लिख रहे हैं. तो नेम क्लास में हम यहाँ पे स्टूडेंट की ये सब उनके नाम्स हैं जो नेम्स है स्टोर कर सकते हैं इसमें. It would be much easier for us to assess those. So, what is class? Firstly, we will discuss what is class. So, class is a blueprint or a template used to create objects. Class is a template or blueprint जिससे हम objects आगे create करते हैं. और it defines the data, means attributes define करते हैं. Behavior जैसे कि methods. Class itself does not store actual data for each object. जो क्लास है वो खुद से या एक्चुअल डाटा स्टोर नहीं करती. क्लास के इट स्पेसिफाई व्हाट डाटा एंड बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास विल हैव. मतलब वो ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को या उसके डाटा को स्पेसिफाई करती है. मतलब क्लास कुछ स्टोर नहीं करती, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के डाटा को स्पेसिफाई करने के लिए या उसमें कौन सा डाटा स्टोर हुआ है या उसका बिहेवियर क्या डाटा का, वो सब से स्टोर करने के लिए we these classes are used. So here is the real life example. Firstly, in real life example, we can see the blueprint of a house. So when we are building a house, we can see firstly the blueprint of house, that how it is constructed, how this will be constructed, how many houses can be built on the basis of that one blueprint in which we have given all the details of the house. Similarly, blueprint is we can define blueprint and we can specify the class. From the class, we can make many objects from the class. So this is the real life example of the use of class, how we can use that in our real life example. So taking moving above, so we can take another example. Thinking about a mobile phone company. So we can think about a mobile phone company. So the companies, example, we have a company named Samsung. So think about my mobile phone company. There is a company called Samsung in which the company designed one model. So the company designs one model. Thousands of phones are manufactured from the same design. Suppose there is a model. Suppose we assume a company named Apple. So Apple has thousands of phones manufactured with the same design.
So firstly, we will specify a model named iPhone 17 Pro Max. So there are not only one model, there are thousands of phones and models जिससे कि उसका डिजाइन भी सेम होता है, सिमिलर, सब चीजें सिमिलर है, and manufacturing is always also similar. So the design is the class. The design which these phones are having, this iPhone 17 Pro Max is having, design is called class. And class. So the phone is an object here. क्लास कौन सी है, डिजाइन है, जो फोन का डिजाइन है वो उसकी क्लास होगी, और जो फोन है खुद, मतलब जो फोन है वो ऑब्जेक्ट होगा. नेक्स्ट है characteristics of class. What are the characteristics of class? Class is the logical entity, user defined data types. So class contains variable and methods. क्लास में वेरिएबल्स और मेथड्स भी होते हैं जहाँ से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, इसमें ये वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और उसके मेथड कौन से हैं. Class is used for object creation. So we can create any object by using the class. So suppose we have to make the hostel list of the students. So we will store the details of the students also. So this, by the help of class, we can create and create the objects. So the reusable, मतलब class is reusable. We can reuse the classes, but once we have made the class, we can reuse the same class for rest of the code. So we can it organizes the code. So by taking the use of taking a class, we can organize the code also, because it becomes much easier to assess the code which is written in a format of a class where class is defined, because it makes a easy sequence for the person reading that code. So what is the syntax of the class? So firstly, class is so firstly we will specify the class, then we will write the class name with a colon, then we will pass that. Example, class student, मतलब यहाँ पे जो क्लास का नाम है वो है स्टूडेंट, उसके बाद हम उस वैल्यू को पास करेंगे. उसके बाद नेमिंग रूल्स क्या है क्लासेस में, क्लास में कौन कौन से नेमिंग रूल्स है जो हमारे लिए that are most important for us while defining a class. So class always begins with a capital letter. Not always. It is recommended to begin the class with a capital letter because it becomes easier to identify the class. So class cannot start with a number. We cannot start the class name with a number because it's not possible to define that. It cannot contain spaces. So class cannot contain space. Because if we have to create suppose double word class, so we have to give the space with the help of, instead of using the space we can use the underscore or spacing, but we can't, it can't contain the spaces. So it cannot use keywords. Classes cannot use keywords. इसमें keywords use नहीं हो सकते जैसे कि def है, etc etc. So correct form है student, bank account, car, employee. और इसमें अगर wrong है, क्योंकि ये देखो ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है, एस क्लास का नाम, यहाँ पे बैंक अकाउंट, this bank account are two different words. So we have used the capital letter for both of these, and we haven't put any of the space because we can't put the spaces in between the class. The spaces must be avoided in a class. So the first letter is capital, class employee. So these are the correct form of classes. So what's the wrong form, and मतलब हम कैसे गलती से लिख सकते हैं जो कि हमारे यहाँ पे पाइथन में जिसको wrong माना जाता है. Smallest, we can't start a class with a small letter. Suppose here we have written student details. S is small, so we have also put a space. So here it is written that we can class the rules of the class, it cannot contain spaces.
So we should not put a space in between these two words. So it cannot start with a number. 1, 2, 3 is a number. So we can't start a class with that number also. So again, there is the same problem we have written in a small language. What is an object? Moving towards an object. An object is an instant of class. क्लास का ही एक इंस्टेंस होता है जहाँ पे हम क्लास एक क्लास डिफाइन कर ले, जैसे कि हमने क्लास बना ली कार और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे क्लास में। उसकी क्लास कौन सी क्लास है, कार है। कार कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं वो लिख लेते हैं या कार के नेम्स लिख लेते हैं। वो ऐसे ही एक क्लास बना के उसके नीचे जो उसके इंस्टेंसेस होते हैं, जो उसके टाइप्स मतलब टाइप्स के तरह ही मान लो, बट इट्स नॉट दैट टाइप्स, बट फॉर imagination we can consider the types. So object is the instant of a class. So the object occupies memory. Object occupy करता है space कुछ. So each object has some identity. Each object has state and behavior. So they all have this individually space, state, and state, behavior, and identity. So we can see with a real life example that the class the name is car. That the class name is car. तो जो ऑब्जेक्ट्स है इसके वो हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के मतलब इंस्टेंसेस होते हैं क्लास के इंस्टेंसेस, जैसे कि BMW भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, टेस्ला हो सकती है, hyundai हो सकती है। एवरी क्लास इज एन ऑब्जेक्ट। एवरी कार, यहाँ पे जो हर एक कार है वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमने कार को क्लास नेम कार है, कार में ही ऑब्जेक्ट्स स्टोर हुए हैं, तो यहाँ पे ये क्लास बन गई कार और ऑब्जेक्ट्स होंगे ये सारे कार के नेम्स। So what is the characteristics of object? Each object has identity. हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी आइडेंटिटी होती है, जैसे कि यूनिक मेमोरी लोकेशन, मतलब उसको स्टोर करने के लिए एक यूनिक मेमोरी लोकेशन चाहिए होती है, तो क्या ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल, राहुल एंड अनु आर डिफरेंट स्टूडेंट्स। सो ये दो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लोकेशन होगी ऑब्जेक्ट में, वो सारी क्लास में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वो दोनों की डिफरेंट लोकेशन होगी, दोनों को सेम तरह से स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, सेम नहीं है इसीलिए। So what is state? Current value stored inside object. So the current value that is stored मतलब जो आप current value स्टोर कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हम कहते हैं स्टेट। एग्जाम्पल है राहुल, उसकी एज है 19, ब्रांच कौन सी है, CSC, और CGPA 8.2। सो जो स्टेट है उसकी मतलब उसमें कौन कौन सी वैल्यूज अब हम स्टोर कर रहे हैं, जैसे एज में वैल्यू स्टोर नहीं आएंगे, ब्रांच में है CSC वैल्यू, CGPA is 8.2। So these are all the values stored inside the object. So what is behavior? Function perform that object perform. तो जो function एक object, जैसे यहाँ पे object है, कोई भी object ले लो, जैसे student object है, वो ये यहाँ पे कौन कौन से functions perform कर रहा है, मतलब उसके कौन कौन से काम है, वो या ये हमारा एक बन गया behavior उसका। जैसे student है तो स्टूडेंट है स्टडी करता है, क्लासेस अटेंड करता है, उसके बाद वो असाइनमेंट सबमिट करवाता है, तो ये उसके होंगे सारे फंक्शंस की ये काम कर रहा है। फंक्शंस में जो ऑब्जेक्ट्स है, फंक्शन दैट द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ये फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे बिहेवियर। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। So what is the general syntax of creating the object? So the general syntax is ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके क्लास का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 में स्टूडेंट, स्टूडेंट 2 में स्टूडेंट, यहाँ पे टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ द टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट, तो हमने जो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, स्टूडेंट है क्लास, उसके बाद स्टूडेंट 1 मेमोरी एड्रेस 1 और स्टूडेंट 2। नेक्स्ट है हमारे पास
उसके बाद है क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज क्लास? क्लास क्या आती है, ऑब्जेक्ट क्या आता है, इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। फर्स्टली जो क्लास होती है वो ब्लूप्रिंट होती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल इंस्टेंस होता है। सो लॉजिकल एंटिटी, class is the logical entity and object is a physical entity. So class does not occupy object data memory. Class है जो वो ऑब्जेक्ट में डाटा मेमोरी यूज नहीं करती, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑक्यूपाई करता है मेमोरी को। सो क्लास इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। क्लास को ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्लास से ही जनरेट होता है, मतलब क्लास से ही क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएटेड फ्रॉम क्लास। सो क्लास है, वन क्लास कैन क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट्स। एक क्लास से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास को, मतलब एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है व्हाट आर एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। सो डेफिनेशन है, एट्रीब्यूट आर द वेरिएबल दैट बिलोंग टू अ क्लास और एन ऑब्जेक्ट। मतलब एट्रीब्यूट्स वो वेरिएबल है जो एक क्लास को या उस ऑब्जेक्ट को, मतलब क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या तो वो क्लास को बिलोंग करते हैं वेरिएबल्स, और ऑब्जेक्ट को भी बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों सेम ही बात है, क्लास को करें या ऑब्जेक्ट को करें। अगर वो ऑब्जेक्ट को करेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट बिलोंग्स टू द क्लास, और अगर वो क्लास को करेंगे बिलोंग, तो ऑब्वियसली उसके जो ऑब्जेक्ट्स है उसको तो बिलोंग करेंगे ही। होते हैं जैसे दे स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल है, हमारे पास स्टूडेंट है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है नेम, रोल नंबर, एज, ब्रांच एंड सीजीपीए। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। पाइथन mainly has two types of attributes. Instant attributes मतलब belong to each object separately. इसमें हर एक ऑब्जेक्ट को सेपरेटली बिलोंग करते हैं इंस्टेंट एट्रीब्यूट्स। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी डिफरेंट वैल्यूज होती है। एग्जांपल है, राहुल उसकी एज है 20, प्रिया है उसकी एज क्या है 19। तो इसमें जो एट्रीब्यूट है, जैसे एज, एज तो सेम है बट डिफरेंस है कहाँ पे आ रहा है इनकी वैल्यूज में। इसकी एक की एज है 20, दूसरी की एज है 19। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट तो सेम है, एज एज, बट उनके जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये वाले एट्रीब्यूट को हम कहते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट, जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट है जो वो सेपरेटली बिलोंग करता है। नेक्स्ट है क्लास एट्रीब्यूट, शेयर अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कॉमन होता है हर एक के लिए फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है कॉलेज का नाम, जैसे कॉलेज का नाम है एलपीयू, तो यहाँ पे जो कॉलेज है वो कॉमन है सबके लिए, तो ऐसे वाली क्लास को कहते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स। सो नेक्स्ट है, एवरी स्टूडेंट बिलोंग टू द सेम कॉलेज। डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंस एट्रीब्यूट एंड क्लास एट्रीब्यूट। इंस्टेंस एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस देखेंगे। तो जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट फॉर ईच ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज होते हैं। जैसे हमने देखा एज के लिए, अब हम डेट ऑफ बर्थ के लिए भी देख सकते हैं कि हर एक मतलब डेट ऑफ बर्थ एक कॉमन चीज़ है, बट इसमें जो वैल्यूज है जैसे डेट ऑफ बर्थ हर किसी का अलग है, तो यहाँ पे इंस्टेंस एट्रीब्यूट होगा वो चीज़। क्लास एट्रीब्यूट का आगे सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कॉलेज का नाम सबके लिए सेम है, स्कूल का नाम सबके लिए सेम है। उसके बाद इंस्टेंट एट्रीब्यूट क्या होता है, स्टोर्ड सेपरेटली। तो जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट होता है वो सेपरेटली स्टोर होता है, और जो क्लास एट्रीब्यूट है वो शेयर एट्रीब्यूट होता है। इंस्टेंट एट्रीब्यूट यूजेस ऑब्जेक्ट and class attribute uses class. So instant attribute uses more memory, और class जो less memory use करती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे what are methods. Methods क्या होते हैं? Methods are the function written inside a class. तो किसी भी क्लास के अंदर जो फंक्शंस हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं methods. So they define the behavior of an object. Example, student. सो इसमें मेथड कौन कौन से, स्टूडेंट क्या करता है, स्टडी करता है,
क्लास अटेंड करता है, सोता है और असाइनमेंट सबमिट करता है। यहाँ पे इसके 1 2 3 4 4 different types of methods we have specified. So why do we need methods? Suppose a mobile phone, तो इसमें एट्रिब्यूट कौन कौन से हैं, उसका ब्रांड है, उसकी रैम है, मतलब कितनी वो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी, उसके बाद उसकी बैटरी लाइफ कितनी है, उसके बाद जो बिहेवियर है उसका, जैसे कि बिहेवियर क्या है, कॉल कर सकते हैं, we can use the camera in a phone and we can also charge that phone. So without method, object would only store information, but method make objects perform actions. Means what actions an object can perform, these all are specified in these methods. So method is the, so we need method for specifying the performance or the action of that object. So these are all specified in the methods. Next is types of methods. So there are different types of methods. First is instance method. Instance method means works on object data. Object के data पे work करता है, uses self. Sample and display study show. मतलब इंस्टेंस मेथड है कि ऑब्जेक्ट में डाटा यूजेस सेल्फ, और जैसे डिस्प्ले करेंगे उसको स्टडी करेंगे उसको शो करेंगे, सेल्फ डिस्प्ले करेगा या स्टडी करेगा या शो करेगा। उसके बाद है क्लास मेथड, वर्क्स ऑन क्लास डाटा, मीन्स इट वर्क्स ऑन द डाटा, क्लास डाटा। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव क्लास मेथड, सो वर्क्स ऑन द क्लास डाटा। यहाँ पे क्लास मेथड है जो वो क्लास के डाटा पे वर्क करेगा। उसके बाद है शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो क्लास मेथड है वो सब ऑब्जेक्ट्स का एक ही होता है, मतलब शेयर्ड होता है, यूजेस सीएलएस। उसके बाद है स्टैटिक मेथड, थर्ड टाइप, जैसे कि इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड क्लास डाटा। यूटिलिटी मेथड क्या होता है, सॉरी यूटिलिटी मेथड स्टैटिक मेथड, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट की भी मतलब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स और क्लास के डाटा पे दोनों पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम कहते हैं स्टैटिक मेथड। सो नेक्स्ट इज द एग्जांपल, जैसे कि कैलकुलेटर फंक्शन, कैलकुलेटर फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट्स एंड द क्लास डाटा। Next is the self keyword. This one of the most important concepts in the Python loops. So the definition is the self keyword is used, self refers to the current object. So current objects में जो यूज हो रहा है उसको हम कहते हैं self. The self से उसको रेफर करते हैं whenever an object calls a method, Python automatically passes that object as the first argument. Why is self needed? Suppose there are two students, Rahul, Priya, and both all. So we will display. Python must know which object data should be displayed. So self solves this problem. Self means which type of data or which data needs to be displayed. So self is needed in that sense. So we will take a real life example in which we will say, imagine a teacher says, raise your hand. So every student understand that you refer to themselves. Similarly, self means my own object. Means constructor. So what is constructor? A constructor is a special method automatically executed when the object is created. When an object is created, so the constructor है जो वो अपने आप वो automatically execute हो जाता है special method में। वो special method है एक तरह का constructor that is executed automatically when an object को हम create करते हैं, जैसे Python constructor name है, हम INIT, यहाँ पे आगे भी दो अंडरस्कोर्स है और बैकवर्ड में भी दो अंडरस्कोर्स है। तो वाई कंस्ट्रक्टर्स हम क्यों यूज करते हैं? It initializes object data automatically. It
इनिशियलाइज करता है डाटा को ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ असाइनिंग वैल्यूज लेटर। कंस्ट्रक्टर प्रिपेयर्स द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग क्रिएशन। क्रिएशन में ही कंस्ट्रक्टर है वो डाटा को प्रिपेयर कर लेता है पहले से ही। So what are the characteristics of constructor? So we will study the constructor characteristics. Firstly, it is automatically called. The constructor is automatically called. So it is a special method. Name is fixed and used for initialization. Object creation process में step 1 है class is written. Step 2 class is created and step 3 constructor executes. Step 4 memory allocation allocated. Step 4 is object ready for use. सबसे पहले क्या होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है पहले उसकी क्लास लिखेंगे उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स को एग्जीक्यूट करेंगे फिर मेमोरी लोकेट करेंगे उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी करने के लिए वो सॉरी यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा उसके बाद असेस कैसे करेंगे एट्रीब्यूट्स को एट्रीब्यूट्स कैन बी असेस यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. So the syntax to assess the attribute is object लिखेंगे dot attribute लिखेंगे. एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट है जहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसके बाद उसके कार है फर्स्टली कार का स्पीड जो कार है वो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसके बाद उसकी स्पीड होगी उसके बाद डिस्कसिंग assessing methods. So students check करता है dot operator assessing attributes. स्टूडेंट तो ऑब्जेक्ट के बाद उसका एट्रीब्यूट लिखेंगे ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट उसके बाद है उसका रोल नंबर वो है एट्रीब्यूट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है और उसका एट्रीब्यूट ये साथ साथ में ये सिंटैक्स है तो हम असेस करने के लिए एट्रीब्यूट को डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स को असेस करने के लिए तो असेसिंग द मेथड्स हम मेथड्स कैसे असेस कर सकते हैं यहाँ पे तो एट्रीब्यूट होंगे तो मेथड्स आल्सो यूजेस द डॉट ऑपरेटर जैसे हम इस एट्रीब्यूट्स को असेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं वैसे ही हम मेथड्स को असेस करने के लिए भी डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं the method also uses dot operator एग्जांपल है स्टूडेंट डॉट स्टडी मेथड क्या स्टडी करता है यहाँ डिस्प्ले तो स्टूडेंट डॉट का मतलब है ये मेथड मेथड है उसको डिस्प्ले करता है so the dot operator python uses dot operator to assess वेरिएबल को असेस करने के लिए फंक्शंस को असेस करने के लिए या मेथड को असेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं जैसे कि वेरिएबल कोई है फंक्शन जैसे स्टूडेंट डॉट नेम नेम को असेस करने के लिए ऑब्जेक्ट है कार और स्पीड को असेस करने के लिए एम्प्लॉय क्लास में सैलरी को असेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं so next is multiple objects so one class can create unlimited objects example student Aman, Priya, Neha, Simran all belong to the same class that is student. So the object independence, each object independence क्या होता है? Each object store its own data. हर एक object का अपना ही एक data होता है. Example student 1 में है age 19 है. ठीक है. Student second की age है 20. Changing one object does not affect मतलब अगर हम फर्स्ट स्टूडेंट की एज चेंज करके 19 से 29 लिख देंगे तो सेकेंड स्टूडेंट की एज पे उसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा और अगर हम सेकेंड स्टूडेंट की एज चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट हम फर्स्ट स्टूडेंट की एज पे देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो अपना ही डाटा स्टोर करता है सिर्फ दूसरे का डाटा स्टोर नहीं करता so this is the object independence so it is updating attributes updating attributes means object values can change during execution object की वैल्यू उसके execution के टाइम चेंज कर सकते हैं जैसे कि एग्जांपल before age is equal to 9 after age is equal to 20 object can update their own information अब जो objects है वो अपनी information खुद ही अपडेट कर देते हैं उसके बाद है deleting attributes
पाइथन allows the removal of object attributes। पाइथन में हम ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डिलीटिंग एट्रीब्यूट्स। सो दिस फ्रीज द मेमोरी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। सो ये अगर हम डिलीट करेंगे तो इससे हमारी जो मेमोरी है वो भी फ्री कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हम उसको डिलीट करके मेमोरी क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी डिलीटेड, जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रिगर्स डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं व्हेन नो रेफरेंस रिमेन। पाइथन गार्बेज कलेक्ट automatically reclaims the memory। So object life cycle, every object follows three stages। क्लास क्रिएट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करते हैं, ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके बाद मेमोरी को रिलीज कर देते हैं। What is we had study the real life example such as बैंक। बैंक में देखते हैं क्लास है, जैसे बैंक अकाउंट एक क्लास है। उसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, उसमें हमारे बैंक का अकाउंट नंबर होता है, उसका बैलेंस होता है, अकाउंट का नाम होता है। उसमें मेथड कौन कौन से, हम उसमें क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं कैश को, विड्रॉ कर सकते हैं कैश, और चेक कर सकते हैं अपने बैलेंस को। तो जो ऑब्जेक्ट्स है, राहुल अकाउंट, प्रिया अकाउंट एंड अमन अकाउंट। ईच अकाउंट हैज डिफरेंट वैल्यूज बट द सेम स्ट्रक्चर। इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, बट जैसे राहुल के अकाउंट में कुछ लाइक अगर 3-4 लाख है, मतलब 4 लाख है सपोज राहुल के अकाउंट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिया के अकाउंट में भी सेम ही अमाउंट होगी। तो इसका मतलब है कि जो अकाउंट है उसमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर्ड है, बट उसका स्ट्रक्चर है जो फोर बैंक अकाउंट के अंदर आते हैं वो सेम है। जैसे प्रिया में उसके पास 2 लाख है, तो उसके अकाउंट में, प्रिया के अकाउंट में 2 लाख स्टोर्ड है और उनके अकाउंट में 10 लाख है। इन तीनों में डिफरेंट वैल्यू स्टोर्ड है। नेक्स्ट इज द रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार क्लास है कार। एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, ब्रांड है, उसका कलर होता है, कार का प्राइस होता है, कितने की है कार, स्पीड कितनी इसकी मैक्सिमम स्पीड है, और जो जो मेथड वो परफॉर्म कर सकती है। कार स्टार्ट होती है, स्टार्ट करते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसमें ब्रेक भी लगा सकते हैं, ऑन ऑफ और ब्रेक। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट है कार में, BMW इज एन ऑब्जेक्ट, ऑडी या टेस्ला, ये कार के टाइप्स होंगे। नेक्स्ट इज मोबाइल क्लास। क्लास नेक्स्ट है मोबाइल, देखेंगे इसमें एट्रीब्यूट्स रैम, स्टोरेज, कैमरा, बैटरी एक्सेट्रा। तो मेथड्स होंगे वो होंगे कॉल, चार्ज, कैमरा। ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, दीज आर द डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द फोन। एडवांटेजेस क्या है क्लास की, कोड की रीचेबिलिटी, बेटर ऑर्गेनाइजेशन, easy maintenance, security, less repetition, easy debugging for the program, easy expansion। So the common mistakes है, thinking class and object are the same, they are different। तो ऑब्जेक्ट और क्लास को सेम समझना, जबकि वो दोनों ही डिफरेंट है। क्लास है जो ब्लूप्रिंट है, और जो ऑब्जेक्ट है वो उसका रियल इंस्टेंस है। मिस्टेक नंबर 2 करते हैं जो है कंफ्यूजिंग एट्रीब्यूट्स विद मेथड्स। हम एट्रीब्यूट्स और मेथड को सेम करते हैं जबकि दोनों ही डिफरेंट है। तो एट्रीब्यूट जैसे हो गया नेम, एज, सैलरी, ये एट्रीब्यूट है। और मेथड क्या है, क्या काम करते हैं वो मेथड्स हो जाते हैं, जैसे कि वो डिस्प्ले करता है, स्टडी, डिपॉजिट, डिस्प्ले मतलब फोन में डिस्प्ले होती है, कुछ डिस्प्ले करता है, स्टडी है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो स्टडी करते हैं, डिपॉजिट बैंक में हम चीज़ें डिपॉजिट करते हैं, वो उसके फंक्शंस होते हैं, उसको मेथड्स कहते हैं। जस्ट लाइक प्लीज फॉरगेटिंग सेल्फ, सेल्फ का यूज करना भूल जाते हैं कभी कभी। एवरी इंस्टेंट मेथड रिक्वायर्स सेल्फ एज द फर्स्ट पैरामीटर, उसमें जो फर्स्ट पैरामीटर है वो सेल्फ होता है। these are the questions, so these are some of the MCQs which we can see, and this is all for this video, thank you।